Types of research, quantitative, pre-experimental designs today. First, we will discuss the definition of research again. So quick recap is, research is a systematic method of investigation or a study with an objective. First is to gain knowledge, and the second one is to find answers to questions or to solve practical life problems. So these are the two objectives which we will always recap or revise in each kind of series. Okay, in the previous kind of session, what we studied about the general classification of research is that research is classified on the basis of two aspects. First aspect is the purpose, second aspect is the method. So when we classify research on the basis of purpose, okay, the first purpose, if the purpose is to gain knowledge, increase knowledge, then we go for basic research. And if the purpose is to talk about the applications, to come up with some interventions, and we as a researcher, we want to come up with some promising solutions to the problems, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं, देन वी गो फॉर अप्लाइड रिसर्च. Second aspect was the method. On the basis of method, we discussed three major aspects. First is the quantitative. Quantitative means anything that is related to the numbers, numerical data, digits or anything that can be counted. How many and how much. All right. Quantitative में हमने ये discuss किया था. So if we want to know how many pencils are there, तो हम numbers में हमें answers मिलेंगे. Yes, the tape is like 10 pencils are there in the box. All right. So this is quantitative data. When we talk about qualitative data, qualitative researches tell us about the quality or the nature. Means अगर पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं तो उसमें से 5 ग्रीन है एंड 5 येलो हैं. दिस इज समथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पेंसिल्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर एंड द क्वालिटी, दैट इज टर्म्ड एज क्वालिटेटिव. And when we combine the quantitative as well as the qualitative methods all together, then we term them as mixed methods. All right. So in this session today, we will discuss about the first quantitative researches. उसमें first very important है experimental researches. So we will begin with the whole of the concept of the experimental researches, defining first type under experimental designs as pre-experimental design. So let's proceed. Quantitative researches today. Quantitative research designs, experimental, and today in this topic we will discuss only about the pre-experimental designs. So experimentation. Experimentations are what? Experimental studies are considered as the backbone of the scientific research because अगर experiments नहीं होते तो शायद हम लोग और बहुत ज्यादा किसी भी चीजों में सक्सेस नहीं पा सकते. जो भी इन्वेंशंस, जो भी डिस्कवरीज होती है, दे आर व्हाट, दे आर अ प्रोडक्ट और अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस. सो वी विल डिस्कस अबाउट द कोर एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. The first core element of experimental research is that in experimental studies we always have two variables. First variable is the independent variable. So if this independent variable is the factor that the researcher changes or manipulates in an experiment to study its effect. So that's why it is also considered as the cause. So independent variable वो हमारा cause होता है, हमारा change होता है, हमारा experimentation या हमारा manipulation, जिसको हम करते हैं, इंड्यूस करते हैं ताकि हम आगे अपनी एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट्स स्टडी कर सकें, राइट. Second variable that is present in the experimental study is the dependent variable. Dependent variable is the factor that is measured or observed to see the effect of independent variable. So it is also considered as the outcome or the effect. So the result that is being produced is seen in the dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो देखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हमने चेंजेस करे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस हमको देखने को मिले. So these are the two major variables that are seen in experimental researches. Second core element of experimental research is the cause and effect relationship. It is a type of a relationship in which the change in the dependent variable, that is the cause, directly produces a change in the dependent variable that is known as effect. So cause is independent variable and the changes that it brings in the dependent variable is known as effect. So this cause and effect relationship is also seen in the experimental researches. और हम cause and effect relationship को ही समझने के लिए या results को find out करने के लिए, outcomes को देखने के लिए ही experimental researches करते हैं. So when we talk about core elements, first is the two variables, second one is the cause and effect relationship. Third core element that is very important to be seen in experimental researches is the randomization.
Randomization ensures a fairness that is given to every participant as an equal chance of being selected as a sample in any group. Randomization is a process in which we randomly select our samples, our participant for the study, या जिसको हम subjects भी कह सकते हैं. अपने subjects को हम random process के through select करते हैं अपनी study में, ताकि हम उनसे data को collect कर सकें. We do not follow any particular kind of a sampling, we just follow the randomization. Fourth factor or the core element is the control group. कंट्रोल ग्रुप अगर आपके रिसर्च के एक्सपेरिमेंटेशन में होता है तो वो एक्ट करता है एज अ बेसलाइन जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट. एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंपैरिजन ग्रुप. तो अगर आपके पास दो ग्रुप होंगे और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस को स्टडी करेंगे तो आपकी रिसर्च और ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी, क्योंकि आपने जो कंपैरिजन के लिए कंट्रोल ग्रुप क्रिएट किया है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉपर बेसलाइन दे रहा है, आपकी रिसर्च की स्टडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है. The way comparison is structured, whether it is between the group or it is within the group, is what makes your experimental designs unique. किस तरीके से आपने कंपैरिजन को फ्रेम किया है, हाउ यू हैव फ्रेम्ड द कंपैरिजन. क्या एक ही ग्रुप में कंपैरिजन हो रहा है विद इन द ग्रुप, या एक ही ग्रुप में प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आप कर रहे हैं, या आपने 3 से 4 ग्रुप बनाए हैं, 2 ग्रुप बनाए हैं और उन ग्रुप्स के बीच में यू आर लाइक फाइंडिंग द आउटकम्स, ऑब्जर्विंग द आउटकम, कंपेयरिंग द आउटकम बिटवीन द ग्रुप्स, राइट. सो किस तरीके से आपने कंपैरिजन को स्ट्रक्चर किया है एज अ रिसर्चर, फ्रेम किया है विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप्स, ये आपकी रिसर्च को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को यूनिक बनाता है. So learning these kind of features which we have studied as core element like manipulation, randomization, control and comparison is very essential because altogether because they define the very identity of the experimental researchers. So these are the core elements. अगर आपको ये core elements अच्छे से याद हैं तो इसका मतलब आप आगे का प्रोसेस आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चारों प्रोसेसेस पे सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस का बेस है. फाइन. So okay, now we will talk about a very important term that is known as internal validity. Internal validity is the degree of confidence. ये वो डिग्री है कॉन्फिडेंस की that the change that a researcher is seeing in the dependent variable is caused only and only by the independent variable or the experiment or the intervention या manipulation, and it is not seen by any other factor. किसी और फैक्टर की वजह से ये चेंज नहीं आया है. जब एज अ रिसर्चर आप ये कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यस, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने जो चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लाए, उसी से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं. इट मींस कि आपको एज अ रिसर्चर बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी रिसर्च के मेथोडोलॉजी पे. इसी को हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं. और ये इंटरनल वैलिडिटी आपके पास एज अ रिसर्चर कब फील होती है? जब आपके पास ये चारों कोर एलिमेंट्स जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्चेस की डिस्कस किए, ये आपकी स्टडी में अगर प्रेजेंट है, राइट. फर्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब रिसर्चर सारे एक्सट्रेनर्स और सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज एन एक्सपेरिमेंट इंड्यूस करेगा, तब हम कह सकते हैं कि यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है. तो मैनिपुलेशन शुड बी प्रेजेंट ऑफ डन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सेकेंड फैक्टर इज द रैंडमाइजेशन. जो हमारा सब्जेक्ट या सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस हम सैंपल में रैंडमाइजेशन फॉलोड होना चाहिए. जो सैंपल को आप सेलेक्ट किया वो रैंडमाइजेशन होना चाहिए. इसमें क्या होता है, जब हम रैंडमली अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो वी रिड्यूसेस द सिलेक्शन बाइस. कोई फेवरिज्म नहीं है हमारी तरफ से, कोई पर्टिकुलर प्रायोरिटी नहीं है कि हमको इसको सेलेक्ट करना था, हमें उसको सेलेक्ट नहीं करना था. एज अ रिसर्चर आपको फेयर रहना है, सॉरी, आपको कंप्लीटली फेयर रहना, किसी भी पार्टिसिपेंट को अनफेयर फील नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. तो अगर हम रैंडमाइजेशन को फॉलो करते हैं तो इससे हम बैलेंस करते हैं पार्टिसिपेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रॉस द ग्रुप. थर्ड कोर एलिमेंट इज द कंट्रोल ग्रुप. अगर आपने कंट्रोल ग्रुप प्रॉपर बनाया है तो आप परफेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो. एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल ग्रुप. तो कमांड है आपका, कंट्रोल है आपका आपकी रिसर्च पे, राइट. यस कि मैंने एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप के साथ ही कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर कराया अपने आउटकम से, अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को देखने के लिए. तो जितना स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी आपकी मानी जाएगी.
एंड द फोर्थ वन इज द कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन आप कंट्रोल ग्रुप ना भी बना के, अगर आप ग्रुप्स के बीच में बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप, तो भी आपकी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई और अच्छी मानी जाती है। So when we talk about internal validity, again I am repeating, internal validity जितनी आप core elements को involve करेंगे उतनी high आपकी internal validity होगी, उतना high researcher का confidence होगा that yes मेरे result जो आए हैं research के वो बहुत ही ज्यादा correct, authentic और promising है। ठीक है, तो जो जितनी हम ये जो कोर एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, ये कोर एलिमेंट्स में से जितने ज्यादा होंगे उतनी इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी, जितने कम होंगे उतनी इंटरनल वैलिडिटी मॉडरेट होगी, और जितने कम से कम हम कोर एलिमेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करेंगे उतनी ही इंटरनल वैलिडिटी लो होगी। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इज क्लियर टू यू। लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द फर्स्ट एवर pre-experimental designs that is characterized under the experimental types. So first we will have a quick review understanding about what are pre-experimental designs. Pre-experimental designs are the most basic or the simplest form of the experimental design. Like when we talk about experimentations, जो पहली step है, सबसे पहली और सबसे simple, सबसे सबसे easiest form of researches is known as pre-experimental researches. In these kind of researches, what we do, we just manipulate the independent variable. लाइक जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसको अप्लाई करते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं उसके आउटकम्स। Pre-experimental studies lack the features of true experiments like control group and randomization, and they are often used as the pilot studies or the exploratory researches to see if the intervention shows promising results before investing into more rigorous designs. तो इसको पायलट स्टडीज के तौर पे भी कई रिसर्चर्स करते हैं, लाइक जब हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई मेजर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो उससे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप अपने टॉपिक पे कंडक्ट करके देख सकते हैं एज अ पायलट स्टडी before you get indulged in the more rigorous form of experimental designs. So this is pre-experimental study. Main feature क्या है, हमने रेंडमाइजेशन और ये सारे कोर एलिमेंट्स पढ़े थे, तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस का फीचर वही है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रेंडमाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, इनके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, तो विद इन द ग्रुप्स एंड बिटवीन द ग्रुप्स इसमें कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से इस स्लाइड को आपको क्लियरली समझना होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, टेक अ पॉज, just take a pause to this slide, understand कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसी वजह से इनको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में कैटेगराइज किया गया है, बिकॉज इसमें सारे कोर एलिमेंट्स एक्सपेरिमेंटेशन के प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की जो इंटरनल वैलिडिटी है वो बहुत ज्यादा लो मानी जाती है। बट फिर भी क्योंकि हम लोग एकदम से जंप करके एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पे नहीं जा सकते, तो इसीलिए अगर हम रिसर्च को धीरे धीरे सीख रहे हैं, फॉर्मल रिसर्च के स्टेप सीख रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेप बिफोर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होती है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। सो लेट्स लर्न अबाउट द other kind of the types of researches that are categorized under the pre-experimental designs in the experimental category. So very interesting, first type of pre-experimental design is one shot case study. जैसा कि इसका नाम कह रहा है वन शॉट केस स्टडी, इसमें स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं रिसर्च का, तो इसमें सिर्फ एक सिंगल ग्रुप होता है जो रिसीव करता है ट्रीटमेंट और उसके बाद आउटकम्स को स्टडी किया जाता है या मेजर किया जाता है विदाउट एनी प्री टेस्ट, विदाउट एनी कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, कोई एजुकेटर है जो एन एजुकेटर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आफ्टर अ सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेशन ऑन CPR. What he will do following one shot case study design under the pre-experimental researches, that researcher will divide 40 students in making just one single group that is known as experimental group. अब यहाँ पे कोई randomization follow नहीं किया गया है और ना ही कोई control group है। One shot case study means just one single group, one single group। तो जो सिंगल ग्रुप हमने बनाया है, और क्योंकि हम इसमें कोई इंटरवेंशन देंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके साथ कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए जो ग्रुप हमने बनाया है इसका नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसर्चर ने बनाया, उसमें 40 स्टूडेंट्स को प्लेस किया,
प्री टेस्ट इसमें कंडक्ट नहीं किया जाता है वन शॉट केस स्टडी में, बिकॉज इट इज जस्ट वन शॉट केस स्टडी। जो करना है एक ही बार करके हमें फिनिश करना है। तो ग्रुप बनाया, सीपीआर सिमुलेशन का ट्रेनिंग 40 स्टूडेंट्स को कराई और उसके बाद पोस्ट टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें हमने स्टूडेंट्स का सीपीआर परफॉर्मेंस का असेसमेंट, मेजर या रिकॉर्ड करा या आउटकम्स को स्टडी किया। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस रिसर्च इज देयर इज नो रेंडमाइजेशन, देयर इज नो प्री टेस्ट, देयर इज नो कंट्रोल ग्रुप। हाँ, पोस्ट टेस्ट किया है और एक ही इंटरवेंशन के बाद कर लिया है। That's why this kind of a type research का जो ये title है, that is termed as one shot case study. Fine. तो इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में क्यों डाला गया, अगेन वी विल डिस्कस। वन शॉट ग्रुप में इसीलिए क्योंकि एक ही ग्रुप हमने बनाया जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया, बिना रेंडमाइजेशन के हमने ग्रुप किया, प्री टेस्ट हमने नहीं किया, हमने एक ही बार एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बनाया, उसको इंटरवेंशन दिया और उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया। कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, कोई भी कंपैरिजन ग्रुप इसमें नहीं है। बट क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स का जो एक मेन फीचर होता है दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमें इसमें देखने को मिला। फॉर दैट पर्पस इट इज कंसिडर्ड एज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और वन शॉट केस स्टडी क्यों, क्योंकि एक ही बार ग्रुप बनाया, सीधा इंटरवेंशन दी और सीधा उसके बाद पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया। वी हैव नॉट कंडक्टेड द प्री टेस्ट। तो फॉर दिस पर्पस इट इज नोन एज वन शॉट केस स्टडी. So this kind of researches is very, very popular in education and the other pilot studies that are done for quick and low cost testing to see any kind of results in any kind of education or other sectors. So this is all about the one shot case study. I hope it is clear to you. Second type, design type, which is seen under the pre-experimental designs, is the very, very important part. That is one group, pre-test and post-test design. अब इसका नाम अपने आप कह रहा है, one group, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो हमने एक ही ग्रुप बनाया है और उसी ग्रुप का हम प्री टेस्ट भी लेंगे और बाद में उसका पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। फाइन। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा इस डिजाइन का, सिंगल ग्रुप इज क्रिएटेड एंड इट इज मेजर्ड फॉर द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, प्री टेस्ट, इंटरवेंशन एंड द पोस्ट टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल, एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है जो मेजर करना चाहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम ऑन द स्टेमिना अमंग द जिम ट्रेनीज ऑफ अ पर्टिकुलर जिम। एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ये चेक करना चाहते हैं कि उनके अंडर में जो जिम ट्रेनीज आए हैं उनका स्टेमिना लेवल्स क्या है और एक्सरसाइज प्रोग्राम देने से पहले और एक्सरसाइज प्रोग्राम देने के बाद। सो अगर वो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन को फॉलो करते हैं तो इसको वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगेन, क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में कोई रेंडमाइजेशन नहीं होता तो वो एक सिंगल ग्रुप बनाएंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही लास्ट में अपने आप विद इन द ग्रुप ही कंपेयर किया जाएगा। तो इसी ग्रुप को आप एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप और लास्ट में पोस्ट टेस्ट जब आप कर रहे हो तो कंपैरिजन ग्रुप भी आप कह सकते हो। ओके, तो 30 जिम के ट्रेनीज हैं जो जिम में आते हैं, उनको फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उनका एक स्टेमिना का टेस्ट किया बिफोर द एक्सरसाइज प्रोग्राम। जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम वो उनको देना चाहते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा उनका टेस्ट लिया जिसमें 15 मिनट्स तक उनको ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए या रन करने के लिए बोला गया, जस्ट टू चेक देयर एंड्योरेंस। राइट, उनका एंड्योरेंस ट्रेडमिल पे 15 मिनट्स तक चलने का, मूव करने का, वॉक करने का, रन करने का है या नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी इंटरवेंशन दी। 8 वीक्स तक उन्होंने एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेंथनिंग, एक स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम लॉन्च किया, उनको सिखाया। 8 वीक्स तक उस सारे 30 ट्रेनीज ने उसको फॉलो किया। आफ्टर दैट स्टेमिना टेस्ट वाज डन अगेन, मतलब उन्होंने, जिम ट्रेनर ने फिर से इस चीज को अप्लाई किया और ये देखा कि 15 मिनट्स के लिए अभी ट्रेडमिल का एंड्योरेंस वो कर पा रहे हैं या उससे ज्यादा कर पा रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट रहे, जो भी स्टडी के आउटकम्स रहे, उसको फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने स्टडी किया। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप था, पहले उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देंगे हम और हम प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेमिना बिल्डिंग टेस्ट चेक किया कि कितना स्टेमिना है 15 मिनट तक, कितने लोग लास्ट कर पा रहे हैं, कुछ 10 मिनट में ही गिव अप कर देते हैं, कुछ 5 मिनट में ही ट्रेडमिल को गिव अप कर देते हैं। राइट, तो इस तरीके के स्टेमिना लेवल्स हमको देखने को मिले होंगे। देन आफ्टर दैट इंटरवेंशन वाज गिवन टू द सेम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और उसके बाद वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जब हमने पोस्ट टेस्ट किया उसी को हमने नाम दे दिया कंपैरिजन ग्रुप. So this kind of a study is also a very simple and an easiest form of pre-experimental designs that can be conducted. Features again we will revise. इसमें वन ग्रुप ही होता है लेकिन उसका नाम आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंपैरिजन ग्रुप दे सकते हो.
ठीक है, सो देयर इज ओनली वन ग्रुप, लाइक कंपैरिजन इज डन ओनली विद इन द ग्रुप। देन देयर जो भी ग्रुप आपने बनाया वो रैंडमाइजेशन के मतलब फॉलो करके नहीं बनाया। प्री टेस्ट इसमें होता है, इंटरवेंशन आप देते हैं, पोस्ट टेस्ट भी आप इसमें कंडक्ट करते हैं, एंड चीफली द कोर पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दैट इज सेपरेट काइंड ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इसमें एब्सेंट होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। So this is the feature of the one group pre-test post-test design that is seen under the pre-experimental category. अब इसका यूज हम पढ़ेंगे कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को कहाँ यूज किया जाता है। तो इट इज वेरी कॉमन इन द हेल्थ एंड द फिटनेस रिसर्च एंड द सोशल वर्क एरियाज फॉर इवेलुएटिंग शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस इन द फील्ड. So this is all about the one group pre-test post-test design. I hope it is clear. The third and the last one that is characterized under pre-experimental designs is the static group comparison. Static group comparison, the structure we will see. Two groups are compared, one receives the treatment and the other one does not receive the treatment. तो जो इस static group design है इसकी framing होती है, we have one group, we have another second group, ठीक है। वन ग्रुप में ट्रीटमेंट हम देते हैं, ग्रुप नंबर 2 में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और सीधा पोस्ट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को कंपेयर किया जाता है फॉर द रिजल्ट्स. सो एग्जांपल, वी विल सी एन एग्जांपल. If a school wants to find out whether using a digital learning app improves the grade 9 students mathematical performances, तो हम क्या करेंगे? If we want to follow static ग्रुप डिजाइंस अंडर द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, तो स्कूल क्या करेगा? स्कूल में जो रिसर्चर्स है व्हाट दे विल डू, दे विल फ्रेम टू ग्रुप्स, वही सेम बात है, टू ग्रुप्स बनाएंगे. फर्स्ट विल बी टर्म्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर वन विल बी टर्म्ड एज द कंपैरिजन ग्रुप. पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा क्लास 9A से जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, और सेकेंड ग्रुप विल बी दैट इज कंपैरिजन ग्रुप विल बी फ्रॉम क्लास 9B अगेन 40 स्टूडेंट्स. दोनों में ही प्री टेस्ट को कंडक्ट हम नहीं करेंगे, नो प्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन एनी ऑफ द ग्रुप. लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अपने नाम से कह रहा है कि इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होगा, तो इसमें हम यूज करेंगे डिजिटल मैथ लर्निंग ऐप फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 4 वीक्स. 4 वीक्स तक हम जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्लासिफाई किया है, उनको हम 4 वीक्स तक एक लर्निंग ऐप के थ्रू मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे. ऑन द अदर हैंड जो हमारा कंपैरिजन ग्रुप है उसको किसी भी तरीके की न्यू ऐप से नहीं पढ़ाया जाएगा और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग से उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी. देन वी विल कंडक्ट द पोस्ट टेस्ट और मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस दोनों ग्रुप्स में ऑब्जर्व किया जाएगा, राइट. सो स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन का मतलब है, स्टैटिक का मतलब है आप दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं कर रहे हैं, आपने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंपैरिजन ग्रुप, और दोनों को ही रैंडमाइजेशन के बिना आपने बनाया है. दोनों को ग्रुप ए ग्रुप बी आपने नाम दे दिया, और दोनों में ही आप प्री टेस्ट को कंडक्ट नहीं करेंगे. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप इंटरवेंशन देंगे और कंपैरिजन ग्रुप में आप कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में पोस्ट टेस्ट आप दोनों में कंडक्ट करेंगे कि ये देखने के लिए कि जब हमने एक्सपेरिमेंट दिया क्या सच में उससे कोई बेनिफिशियरी रिजल्ट्स आए, और जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट नहीं दिया क्या उनके बच्चों में कोई प्रोग्रेस वैसे भी थी या नहीं थी. सो दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज टर्म्ड एज स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन. Again, we will revise this group. We will make 2 groups of the trainees without randomization. No pre-test is conducted. Intervention is given, yes, and the post-test is conducted for both the groups. And comparison group इनके अंदर है, control group नहीं है. So here I think control group mention होना चाहिए था. इधर comparison group तो है, but control group नहीं है. That we have considered as a core element of experimental researches. So these 3 are the major types of the designs that are categorized under the pre-experimental designs. So now we will have a quick revision of the pre-experimental designs. हमने पढ़े थे 4 core elements: manipulation of independent variable, randomization, control group and all. Okay, so comparison. तो now we will see one short case study जो pre-experimental designs का सबसे पहला type है. Manipulation of the independent variable उसमें देखने को हमें मिला, randomization उसमें नहीं था, control group इसमें नहीं था, इसीलिए उसकी इंटरनल वैलिडिटी क्या रहेगी? लो. सेकेंड टाइप हमने पढ़ा दैट इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. इसमें भी मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज डन, राइट, विदाउट रैंडमाइजेशन. कंट्रोल ग्रुप तो एब्सेंट था, बट यस कंपैरिजन वाज सीन विद इन द ग्रुप बिकॉज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एक ही ग्रुप है,
पहले आपने प्री टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट दिया, लास्ट में आपने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट किया। तो फॉर दिस पर्पस कंट्रोल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन यस विद इन द ग्रुप ही आपने कंपैरिजन किया है, तो हम ये कहेंगे कि कंपैरिजन प्रेजेंट था, इसीलिए इसकी इंटरनल वैलिडिटी वैसे तो लो रहती है, लेकिन कहीं हम कह सकते हैं कि यस इंटरनल वैलिडिटी मॉडरेट भी कही जा सकती है। थर्ड जो टाइप हमने पढ़ा दैट इज द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। इसमें भी मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज प्रेजेंट, ओके, विदाउट रैंडमाइजेशन। बट यस यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विदाउट कंट्रोल ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा ग्रुप है कंपैरिजन ग्रुप। तो यहाँ पे जो इंटरनल वैलिडिटी है वो लो टू मॉडरेट मानी जा सकती है। So just we have to understand that pre-experimental researches are conducted to understand, or they are the easiest form of the researches, but in the very limited and the less vigorous way as they are compared to the quasi or the other true experimental designs. In pre-experimental designs, the comparisons is weaker because we don't have a control group, and they are more prone to bias, as in most of the pre-experimental designs, the pre-test is not done and the randomization is also not done. Again, we will have a recap of the one shot designs. अभी हमने जो previous slide थी उसमें हमने ये देखा था कि मैनिपुलेशन, रेंडमाइजेशन, कंट्रोल और इंटरनल वैलिडिटी क्या है। अभी हम इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्री टेस्ट, इंटरवेंशन, पोस्ट टेस्ट एंड द टाइप ऑफ द ग्रुप, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो वन शॉट केस स्टडी जो डिजाइन होती हैं, वन शॉट में प्री टेस्ट नहीं होता, यस इंटरवेंशन दी जाती है, पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, और एक ही सिंगल ग्रुप होता है दैट इज टर्म्ड एज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसी वजह से इसको वन शॉट केस स्टडी कहा जाता है। इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन किसी भी तरीके से ग्रुप्स में या आउट ग्रुप्स में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सिंगल ग्रुप है, प्री टेस्ट आपने कंडक्ट नहीं किया, सीधा अपनी इंटरवेंशन दी और आपने रिजल्ट्स देख लिए। वन शॉट एंड द रिसर्च इज फिनिश एंड रिसर्च इज ओवर, दैट इज वन शॉट केस स्टडी। सेकेंड वन दैट वी स्टडीड अबाउट इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो यस वन ग्रुप में जैसा कि इसका नाम कहता है, तो प्री टेस्ट भी कंडक्ट होगा, इंटरवेंशन भी होगी, लाइक मैनिपुलेशन भी होगा आईवी का, पोस्ट टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। और यस व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है हमारे पास, और जब हम पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो यही ग्रुप हमारे लिए बन जाता है कंपैरिजन ग्रुप। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग द कंपैरिजन विद इन द ग्रुप, वन ही ग्रुप, प्री टेस्ट एंड देन पोस्ट टेस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल ग्रुप, तो इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है, और इसमें हमने कंपैरिजन अगर किया है तो वो सिर्फ विद इन द ग्रुप किया है। थर्ड डिजाइन दैट वी हैव स्टडीड इज द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में देयर वाज नो प्री टेस्ट, टू ग्रुप्स थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन ग्रुप हमने बनाया था, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स में हमने प्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, और इंटरवेंशन हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी थी, और पोस्ट टेस्ट हमने दोनों ग्रुप्स में कंडक्ट किया था, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है इसमें, कंपैरिजन ग्रुप भी होता है, बस कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ recap about all three designs that are categorized under the pre-experimental designs. So when we talk about experimental designs, what we have discussed today is a very, very important first initial step of the experimental designs, that is pre-experimental designs, the basis of experimentation. तो जब आप बहुत बड़ी रिसर्चेस करना चाहते हैं, उससे पहले आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप रिसर्चेस इन द रिगरस एक्सपेरिमेंटल वे में करने के लिए रेडी हैं या नहीं। सो दीज काइंड ऑफ रिसर्चेस हैव द वीकेस्ट इंटरनल वैलिडिटी, और जो रिसर्च की डिजाइन आज हमने पढ़े हैं दैट इज वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एंड द स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। In the further sessions, in the next research session, we will discuss very important experimental designs, that is quasi experimental designs, जिनकी validity moderate मानी जाती है। और इसमें हम जो डिजाइन पढ़ेंगे दैट इज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइंस, regression discontinuity design and the matching designs. So stay tuned for the other upcoming sessions on the research, clarifying the concepts and the basis on a more concrete way. So if you are really learning something from this platform, do get associated and keep learning. Thank you so much for joining us and learning and seeing and visualizing this session. Thank you.